Good morning, ma'am. Good morning. Hello. So is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So the next topic that we will start is combinatorics. Combinations. Counting आपने पढ़ी होगी. How do we count? Combinatorics is related to counting. So it's about the number of ways of choosing So it's about the number of ways of choosing some objects out of a collection. आपने problems की होंगी जैसे you want to select 3 balls out of 10. So we use combinations, permutations and combinations हम use करते हैं. Page 28. So we use this combinations to choose some objects out of a collection or a number of ways of arrangement. So we can choose R distinct objects out of a collection of n objects. And this is the formula NCR, n factorial over n minus r factorial into r factorial. Yeah, you are aware of this. Now there are two basic rules, multiplication principle and addition principle. You are familiar, ठीक है, हम ये सब कर चुके हैं, but कई बार क्या होता है ना, explain the basics of combinatorics. ठीक है, अब आपको पता है, but you don't know what to explain. Similarly, probability space. मैं आपको कहूँ explain the probability space. So probability space, आपको पता है probability कैसे निकालते हैं. You know about the sample space, but then you must have some knowledge about the rules, some knowledge about the definitions, some features, characteristics. ये सब हमें पता होना चाहिए. So we have two rules, the rule of product and the rule of sum. And these rules, they can be applied for a finite collection of sets. So this is the rule of product. Suppose there are two sets A and B. And I have to select X number of, there are X number of ways to choose an element from A. X number of ways, Y number of ways to choose from the set B. Then there will be X multiplied by Y number of ways to choose two elements, one from A and one from B. Now when we apply this multiplication principle,
we assume that the events are independent and it applies to any number of successive events. ठीक है, अभी मैंने तो 2 ही events लिए है ना, A and B, so I can have A, B, C. So X ways of selecting from A, Y ways of selecting from B, and Z ways of selecting from C. Then the total ways will be X multiplied by Y multiplied by Z. So it can be applied to any number of successive events. I have taken only 2 here. Now this is an example. These are 2 examples. So how many ways are there to choose 3 officers from a club of 25 people if each person may hold at most 1 office? So 25 into 24 into 23. So 3 post है, 3 post के लिए मुझे choose, I have to find out the ways. Okay, so once I have selected 1, then only 24 are left. So second post के लिए 24 options हैं, third के लिए 23. Okay, now here it is the condition that only one the person may hold at most 1 office. Okay, and then this is another way. So if a person may hold more than 1 office, okay, then the one who is holding this first position, this first post, he may also hold this post and he may also hold this post. So this ये raised to the power आएगा, ये यहाँ नीचे आ गया थी. You make this correction. एक मिनट मान्या. This is make this correction. Next is the rule of sum, yeah, addition principle. So if there are X number of ways to choose an element from A and Y number of ways to choose from B, then there will be X plus Y number of ways to choose an element that belong to either A or B. So it is only when A and B are disjoint events. Okay, so it can apply to any number of disjoint events. I have taken 2, there may be 3, 4, 5, n number of disjoint events. This is one example. 2 examples. A diner may select 1 dessert from 3 pies and 4 cakes. How many ways can this be done? So the diner, he has to select only 1 dessert, either a cake or a pie. So out of 3 pies, he may select 1. So there are 3 choices. 3 plus 4, there are 7 ways. Similar is the second example. You all are familiar with this. आपने ये सब किया हुआ है, आप कर सकते हैं. So we are just revising. I am just revising. बाकी आपने अगर if you have your own understanding of all these topics, then you can use your own understanding. ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, अभी करेंगे हम. एक बार मैं सैम्पलिंग और डिस्कस कर लूं, फिर करेंगे हम. You are familiar with this also. ठीक है, ये सैम्पलिंग मॉडल्स जो हैं, you are familiar with this also. Equally likely outcomes in a finite sample space. You know this. So A is the probability and this is the sample space. Okay, ये आपने पढ़ा हुआ है. ये fundamental rule. We have done this also. Okay, now what is the sampling models? If I say write short note on sampling models. Okay, then this is what I am expecting. So suppose I have a bag containing m different balls. Okay, numbered from 1 to m. Okay, they are numbered from 1 to m. Then n balls can be taken out of that bag with 1, 2, 3, 4. So there are 4 methods of taking out the balls from the bag. There are 4 ways
of taking out the ball from the bag. So one is sampling with replacement and with ordering. So I take out one ball. Okay, so that is the first ball. With ordering का क्या मतलब है? मैंने बैग में से एक बॉल लिया, फर्स्ट बॉल, राइट? हेलो मैम। यस मैम सैंपलिंग मॉडल क्या होता है? वही मैं बता रही हूँ ना, सैम्पलिंग मॉडल्स मीन्स हाउ वी आर टेकिंग द बॉल्स, सैम्पलिंग। मेरा जो सैंपल है वो क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ ए सैंपल। प्रोबेबिलिटी जब मैं निकाल रही हूँ, व्हाट इज द साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, सपोज मैं सर्वे करना चाहती हूँ कोई, ठीक है, ये बॉल्स का एग्जांपल तो हम इसलिए ले लेते हैं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सर्वे का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई वांट टू डू ए सर्वे। ठीक है, मैं सर्वे करना चाहती हूँ कोई। ठीक है, मैं क्या सर्वे करना चाहती हूँ, मैं ये सर्वे करना चाहती हूँ कितने लोग जो है नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, कितने लोग अमेजॉन प्राइम पे देखते हैं, एंड देन व्हाट इज देयर दिस इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कॉमेडी देखते हैं, कुछ जो है जेनर, जिसको हम कहते हैं जेनर। सो यू some people see adventurous movies, some see comedy, some like drama, some like romance. Okay, so I want to do a survey. अब मैं सर्वे कैसे कर सकती हूँ? So I have to do survey, तो कैसे करेंगे? So we will take samples. ठीक है, I will take, सपोज मुझे कॉलेज में सर्वे करना है तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, अब मैं सैम्पलिंग देखो मैं कैसे कर रही हूँ, या तो मैं हर एक क्लास के दो बच्चे ले लेती हूँ। ठीक है, दिस इज सैंपल। सो आई हैव टेकन 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी क्लास, EC फर्स्ट, EC second year, EC third year, EC fourth year. This is one way. I am taking 2 students from each class. So this is sampling to select something. Second method is that instead of choosing from each class, I divide the students into males and females. Okay, and then I take 10 girls and 10 boys. So this is another way of selecting. Sampling means, so the method of selecting, of doing something. Now I want to do something. So what method of selection I am using? और भी कोई मेथड हो सकता है। अब कॉलेज के ही बच्चे हैं, मैं उनको एज ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। सो आई कैन डिवाइड, ओके, 18-19 ईयर्स, देन 20-21 ईयर्स के बच्चे, देन 20-23. So I can divide the students into 3 categories and then I will take their opinion. फिर मैं सर्वे करूँ। और there are many ways of selecting the students from an institute. ठीक है, मैं उनको रीजन के बेस पे भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, सेक्टर 16 के बच्चे सेक्टर 18 में जो रहते हैं, सेक्टर 21 में रहते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, I can segregate them and then select students. So sampling is the way of selecting the method. सर्वे करने के लिए मैं पहले एक मेथड डिसाइड कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ सैम्पलिंग मॉडल्स का एग्जांपल मैंने बॉल का लिया, दिस मीन्स ए बॉल बैग। ये जो it means a bag, you take it as a bag. So a bag contains m balls numbered 1 to m. Okay, so I can have a bag with red, green and black balls. ठीक है, अब रेड, ग्रीन और ब्लैक बॉल्स मुझे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी, वो मेरे सैम्पलिंग मेथड्स हैं। sampling method. So I have different conditions for sampling models. I can sample with replacement and I can sample without replacement. I can take out the balls from a bag with replacement
ना, एक बॉल निकाली, उसका नंबर नोट किया और वापस रख दी विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने एक बॉल निकाल ली और फिर मैंने वो वापस नहीं रखी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगी ना बैग में, वो मैंने बाहर रख ली। सो विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ विद ऑर्डरिंग एंड विदाउट ऑर्डरिंग। ठीक है, विद ऑर्डरिंग इज जब ये लिखा हो कि फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, विद ऑर्डरिंग। विदाउट ऑर्डरिंग इज आई जस्ट टेक 3 balls फ्रॉम ए बैग, इस ऑर्डर में निकाली वो नहीं, आई टेक 3 balls फ्रॉम ए बैग। So by combining these with replacement, without replacement, with ordering, without ordering, I can have 4 different conditions. तो मैं ये बॉल को वापस रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, और बॉल को सीक्वेंस में निकालना है, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे निकालना है, या इकट्ठी 1 2 3, बस मैंने 3 बॉल्स इकट्ठी निकाली। इसके मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। कौन कैसे कॉम्बिनेशन? वन इज दैट आई सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड विद ऑर्डरिंग। सेकंड इज दैट आई सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद ऑर्डरिंग। थर्ड इज सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग। ना मैं बॉल वापस रखूंगी ना कोई ऑर्डर, मैंने 3 बॉल निकाल ली बस। Sampling with replacement. So you let us move forward so you'll get an understanding. Sampling with replacement and with ordering. I take out a ball. N balls are drawn sequentially, and each ball is put back into the bag before the next drawing. The numbers on the balls are recorded in order of their appearance. Balls के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने नंबर नोट कर लिया। हेलो मैम, ये फार्मूला है? हाँ जी, फार्मूला है। देखो मैंने आपको क्या कहा, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है +2 में, आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, यू गो विद दैट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप मेरी बात सुनें। Whatever this I am sharing, I will put this on classroom today. आज मैं क्लासरूम पे ये डाल दूंगी, जो भी ये नोट्स हैं, पीपीटी भी और ये पीडीएफ भी। I will put this on classroom. You just go through. मैम प्रीवियस वाला भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, जो यूनिट 1 की पीपीटी और ये क्लासरूम पे डाल दूंगी। And by tomorrow also, not by tomorrow, I will share the assignment. I will put the assignment also on classroom. और इस वीक में आज ट्यूसडे है, फ्राइडे we will have test of this unit 1, MCQ 1. ठीक है, तो आप जो है आराम से just go through all the material that I have shared. ठीक है, अभी मैं शेयर कर दूंगी, और बुक आपको मैंने बता ही दी है। ठीक है, वो पॉपुलिस पिल्लई की बुक जो है, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। इफ यू वांट आई कैन पुट इट ऑन क्लासरूम, बट द प्रॉब्लम इज दैट माय ड्राइव इज फुल। अगर आपको चाहिए मैं क्लासरूम पे डाल दूंगी, आप लोग डाउनलोड कर लो, फिर मैं उसको, मुझे हटानी पड़ेगी बुक वहां से, तो आपको मिल भी जाएगी बुक, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और ये सब यूनिट 1 तो आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। लिंक मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आई विल शेयर 1 more लिंक। ठीक है, एक और लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। So this is the total number of outcomes. Okay, if we do sampling with replacement and with ordering. So this is the total number of outcomes in this particular case. Then we do sampling without replacement. Okay, so the only difference is that जब हम रिप्लेस नहीं कर रहे तो क्या होगा, ये टोटल नंबर जो है ये कम होता जाएगा। See?
So if I am taking n balls, then the m minus n plus 1. So this is the permutation. ये permutation है आपका. इसमें मिला हुआ क्या मैम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ है जी. प्रोबेबिलिटी ये सब आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है. जिसको प्रोबेबिलिटी आती है उसको ये जानने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं. दिस इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग. ये कॉम्बिनेशन है बाइनोमियल कोफिशिएंट. एंड दिस इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग. प्रॉब्लम हम जब करेंगे ना तब ये दिस इज द समरी. आई विल शेयर दिस आल्सो. लेट्स गो टू द प्रॉब्लम. ठीक है. प्रॉब्लम जो मैंने 2 प्रॉब्लम लिखी हैं, आप वो करेंगे. नाउ डू दिस प्रॉब्लम. ठीक है. अब तक जो आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, जो आपको समझ में आता है, आपने पढ़ा हुआ है +2 में भी. यूज योर ओन जजमेंट टू डू दिस प्रॉब्लम. ठीक है. एक बार आप करेंगे, देन आई विल टेल. राइट योरसेल्फ, फिर मैं बताऊंगी आपको. हेलो मैम. जी. मैम स्वयं से कितना क्रेडिट लेना है? 1 साल में 3. 1 साल में 3 यानी 12 क्रेडिट लेनी है. हाँ जी. मैम अगर 12 क्रेडिट अगर ले लें एक ही बार में तो मैम 12 क्रेडिट एक ही बार में कैसे ले लोगे बताओ? मैम 3 ज्वाइन कर लेंगे ना. 3 ज्वाइन 4 क्रेडिट का 3 ज्वाइन कर लेंगे, हो जाएगा 12. नहीं, 3 ज्वाइन तो कर लोगे, 3 की पढ़ाई कैसे करोगे? कोर्स तो आप कितने भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना सबके लिए. मैम एक टाइम पे 2 का एग्जाम दे सकते हैं? देखो, आप एग्जाम दे सकते हो, पर एग्जाम्स जो हैं, जो कोर्स साथ साथ 12 हफ्ते वाले कोर्सेज के, अधिकतर कोर्सेज के एग्जाम्स एक ही वीकेंड पे होते हैं. ठीक है. कोर्सेज मान लीजिए आपका एग्जाम जो है सेम वीकेंड पे आ जाता है. सैटरडे को एक सब्जेक्ट और संडे को दूसरा. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है. आज एक एग्जाम है, अगले दिन दूसरा. कैसे आप दे पाओगे? मैम एक दिन दोनों नहीं पड़ता है ना मैम? एक दिन दोनों नहीं पड़ेगा ना वीकेंड में? एक दिन दोनों सैटरडे को 2 सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता? अब मेरे साथ तो नहीं हुआ जी ऐसा कभी, पर अब कुछ कह नहीं आउटर मार्क सकते. कितना चाहिए असाइनमेंट को? क्या कह रहे हो? असाइनमेंट के एक्सेप्ट कितना मार्क चाहिए? असाइनमेंट को छोड़कर कितना मार्क चाहिए? आपको 12 असाइनमेंट्स है ना टोटल. मैंने पहले भी बताया है. देखो, 1 मिनट रुको. देखो 12 1 12 हफ्ते का अगर आप कोर्स करते हो, 12 पेन टैप नीचे 1 मिनट से.
आप अगर 12 वीक्स का कोर्स करते हो उसमें आपको 12 असाइनमेंट्स मिलेंगी, और ये 12 में से कम 8 असाइनमेंट्स में आपके जो मार्क्स हैं मोर देन 40% होने चाहिए। ठीक है, मैम कम से कम 8 असाइनमेंट में 40% मार्क होने चाहिए। हाँ, 8 असाइनमेंट्स में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, अगर मान लो दो कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया और दोनों की असाइनमेंट सेम डे पे सबमिट होती है। पता नहीं जी, मैंने तो 2 कोर्स किए हुए हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता था, आप करके देख लो। आई ज्वाइंट 2 कोर्सेज इन दी लास्ट सेमेस्टर। यस, तो मैम एक मेरे 4 साथ हफ्ते ऐसा का हुआ था। है ना बोलो। मैम, दो कोर्स मैंने पहले ज्वाइन किया था, उसको मैंने पढ़ा भी था, इसलिए वो फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने उस समय रजिस्टर नहीं कर पाया था, लेकिन इस समय स्टार्ट हो गया मैम। उसके बारे में मैं पढ़ा हुआ, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, इसलिए अच्छा, मैं हाँ, फिर आप कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक बार असाइनमेंट्स की हुई है ना आपने उसकी। जी मैम, असाइनमेंट भी सेम है। सेम तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, पर अगर आपने एक बार की हुई है तो आप कर सकते हो। ठीक ओके है, आपने अगर एक बार किया हुआ है और आप दोबारा कर रहे हो ना उसी कोर्स को, फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो ना, फिर 2 कोर्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो अपना बता रही हूँ जी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर वो ये था कि एक कोर्स मेरा जो है वो सिर्फ उसका था, इसी प्रॉब्लम। एक कोर्स जो मैंने किया था वो 4 वीक्स का था, एक 12 वीक्स का था, तो शुरू में वो दोनों इकट्ठे चलते रहे, 4 वीक्स और 12 वीक्स। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट वंस आई फिनिश्ड दैट 4 वीक्स कोर्स, फिर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था ना। और आपके साथ तो ये भी है ना कि आप अपने भी तो आपके पास 5-6 सब्जेक्ट हैं ना, कभी किसी का असाइनमेंट है, कभी किसी का एमसीक्यू है, तो अपने भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने, फिर आप वहां से भी 2 ले लो। वो बस आप देख लो कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप कर पाओ, कि अगर आपके पास टाइम है या आपको लगता है आपने किया हुआ है, पहले असाइनमेंट्स की हुई हैं, आपको इस बार बस सिर्फ थोड़ा बहुत ही देखना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। एग्जाम सेम वीकेंड पे हो जाते हैं, बट वही है कि आप जो आपका कोऑर्डिनेटर है ना, कोर्स कोऑर्डिनेटर, उसको मेल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कोर्स कोऑर्डिनेटर पता है ना आपको कहाँ से पता चलता है? ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ये देखो, ये कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं सब, AICTE, CEC, इग्नू। आपका जो कोर्स है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये किसका कोर्स है, UGC का है, NITRRR, NPTEL। आपको कोई भी डाउट अगर है ना, तो ये जैसे मान लो आपका NPTEL का कोर्स है, NPTEL पे क्लिक करा तो ये यहाँ एक सपोर्ट का ईमेल ID आ रहा है, दिख रहा है आपको? support@NPTEL। यस मैम।
तो अगर आपको कोई डाउट है, आपने पिछले सेमेस्टर में कोर्स ज्वाइन किया, उसकी असाइनमेंट सारी हो गई, लेकिन आप एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाए, अब इस सेमेस्टर में वो कोर्स फिर से अवेलेबल है, आप उसका एग्जाम देना चाहते हो, आप पुरानी असाइनमेंट्स अगर कंसीडर करवानी है, होती हैं कि नहीं होती है, जो भी आपके मन में डाउट हो, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है support@nptel.iitm.ac.in। बस आप यहाँ क्लिक करोगे, मेल खुल जाएगी, मेल कर दो जो भी आपको डाउट है, ठीक है। एंड दे डू रिस्पॉन्ड, मैं तो करती हूँ, मुझे जो भी डाउट होता है जस्ट मेल देम, 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी आपका कोर्स है, यहाँ जो भी कोऑर्डिनेटर्स, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, देखो, ठीक है। जिसका भी कोर्स है उसी पे क्लिक करोगे, उसी का वो खुल जाएगा सपोर्ट वाला मेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है, जो भी आपको दिक्कत है वो आप अपनी बता के हल निकलवा सकते हैं, एंड दे डू रिस्पॉन्ड, वो लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। मैंने NITTT का भी एक वर्कशॉप किया था, तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, मैंने उनको मेल किया, सर्टिफिकेट आ गया, आया नहीं मतलब मेल आ गया कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये प्रॉब्लम करके बता दें क्या आंसर आया इसका, करिए किसी ने, तो चलो हिंट में बता देती हूँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल जो है उससे हो जाएगा ये। हमारे पास टाइम थोड़ा ही बचा है, ठीक है। So 3 students are to be selected at random. 3 students are to be selected at random, one after the other. So first part हम पहले करते हैं. So find the probability that first 2 are boys. ठीक है. So there are 12 boys, 8 girls हैं. ठीक है. और total क्या है? So total number of students is 12 plus 8, 20. So out of 12 boys, first 2 are boys. ठीक है. तो पहला बॉय होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा भी लड़का ही होगा. तो अब कितने बचे हैं मेरे पास? बॉयज 11, क्योंकि एक मैंने सेलेक्ट कर लिया. टोटल कितने रह गए? 19. ठीक है. और तीसरी लड़की होगी. सो देयर आर टोटल 8 पॉसिबल, 18. So the probability that first 2 are boys it is given by this. अब आप इसको कैलकुलेट करके आप देख लेना है. You just find out what will be the answer. So it will be ठीक है. Now the second part is the first and third are of the same sex, same gender.
सेकेंड इज ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो मतलब अगर पहला बॉय है, दूसरा गर्ल और तीसरा बॉय है, या तो ये हो या ये हो, यही चाहते हैं हम। फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑफ सेम जेंडर एंड द सेकंड इज ऑफ ऑपोजिट जेंडर। सो फर्स्ट एंड थर्ड बॉय है, सेंटर सेकंड जो है वो गर्ल हो, या फर्स्ट और थर्ड गर्ल हो, सेकंड जो है वो। So you have to find out two probabilities. निकाल सकते हैं। So the first will be boy. So there are 12 boys out of 20. And second is a girl. So there are 8 girls, 8 निकल गया, so 19. And this is 11 by 11 boys are left, 18. पहली लड़की होगी, so there are 8, this is 8 by 20. Then there are 12 boys, 12 by 19. And then this is, now there are only 7 girls. ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लियर है तो फिर अगला मैं बता देती हूँ, आप कर लेना, टाइम हमारे पास कम ही बचा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो दिस इज क्लियर। ठीक है, ये जो मैंने आपको सैम्पलिंग मेथड्स कराए हैं, तो ये आधी प्रॉब्लम ही आई, बाकी की प्रॉब्लम कहाँ गई? नॉट रिप्लेस्ड आएगा, वॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। आप ये नोट कर लीजिए प्रॉब्लम, आप कर लेना। प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम, टेक ए फोटो और स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू कैन। So you have to use combinations here. Combinations आपको यहाँ यूज करने हैं। So A, take two events A and B. Okay, so the probability of getting 4 balls in the first draw, and then probability of getting 4 balls in 4 white in the first draw and 4 black in the second draw. So you have to withdraw 4 balls. ये आप कर लेना. We will discuss this if required tomorrow. ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will discuss this tomorrow. Okay, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया. I will put the material on classroom. Just go through this chapter. बाकी MCQ और assignment की information I will put it in your class group also. Okay. चलिए ठीक है. Now let me just count. So there are 11 students. Okay, thank you all.